workshop on neuro-linguistic programming brought to you by Ehsas Ladies Forum. Let us begin our program with the beautiful recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. Jazakallah khair. Today's webinar is brought to you by Ehsas, which is a psychosocial support initiative taken by Ladies Forum. Ehsas is a group that provides mental health counseling, education, spiritual support, group support, and other such services by a group of professionals. This initiative is not only providing psychological and spiritual assistance, but also works on the overall health and well-being of the community through webinars, sessions, and awareness videos. NLP, which is neuro-linguistic programming, is a system of alternative therapy intended to educate people in self-awareness and effective communication, and to model and change their patterns of mental and emotional behavior. Neuro-linguistic programming is learning the language of our own mind. It gives us strategies for observing human behavior and learning from the best and worst of it. It helps us relax ourselves
and get rid of daily stresses and tensions. Our workshop will be led by Ms. Nasiha, who is an NLP basic practitioner, an ex-Air Force officer, and Silva Life System qualified as well. Silva Life System is a self-help and meditation program. Ms. Nasiha got her master's in geography and is also a hijama practitioner. She is from Pakistan and is residing in Al Ain. Along with that, she is part of our Ehsaas counselors team and puts great effort in providing free counseling to our clients. Without further ado, I would like to ask Ms. Nasiha to begin our training. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear respectable ladies. Jazakumullahu khairan kaseera for inviting me here, and I am very much thankful to Ehsaas Forum. They organize such beautiful webinars, और मैं खुद क्योंकि इसका पार्ट हूँ तो मैंने इसको बहुत मैंने यहाँ से इन वेबिनार से सीखा है. May Allah give them the best of the ajr. Ameen. So let us start now. The first ayah, it was so beautiful, mashallah. I will start with the first ayah of this recitation. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये पहली आयत बहुत ही खूबसूरत इसमें जो आई वो वल्लज़ी अंशाकुम अस्समअ वल अब्सार वल अफ़ईदा, and it is he who created for you hearing, sight, eyes and intellect, yet you hardly give any thanks. कि हम जो हैं अल्लाह ताला ने हमें वही है जिसने हमारे लिए बनाए हैं आंखें, कान और दिल, और तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो. तो आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की इस वेबिनार में कि हम एक्सप्लोर कर सकें कि हम किस तरह अल्लाह ताला की नेमतों का मजीद अच्छा और बेहतर इस्तेमाल करके अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन सकते हैं. हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं ताकि हम खुद को एक बेहतर इंसान बना सकें और दूसरों के लिए हीलर्स बने, शिफा बने. नेक्स्ट स्लाइड. तो इसके लिए आज हम समझेंगे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है. बहुत सौ के लिए ये बिल्कुल एक नई टर्म है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेकअप करेंगे और देखेंगे कि इस फ्रेज का क्या मीनिंग है. इसका फर्स्ट पार्ट है न्यूरो. न्यूरो का मतलब है न्यूरोलॉजी, जैसे हम सबको पता है. इट रेफर्स विद द ब्रेन. और उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक रेफर्स टू द लैंग्वेज. अब इसमें कौन सी लैंग्वेज है? इसमें वो तमाम वर्बल लैंग्वेज भी आती हैं और इसमें वो तमाम जेस्चर्स भी आते हैं जिससे हम अपनी थॉट्स को, अपनी इंटरनल फीलिंग्स को हम बाहर की दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे डिफरेंट सिंबल्स हैं, हमारी कंप्लीट यानी बॉडी लैंग्वेज, इसमें हमारे ऑल 5 सेंसेस सब आते हैं इन द पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज. और जो थर्ड पार्ट है प्रोग्रामिंग, ये बिल्कुल कंप्यूटिंग की तरह है. जैसे हम अपने एक्सपीरियंसेस को माइंड में सेव करते रहते हैं और फिर टाइम आने पर उसको और उस सिचुएशन में हमें वो हमारे एक्सपीरियंसेस खुद ब खुद हमारे माइंड में सामने आते जाते हैं. आसान अल्फाज में आज हम माइंड की लैंग्वेज का कुछ सही तरह से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना समझेंगे. अच्छा, जैसे होता है ना कि मेटाफोर अगर मैं यूज करती जाऊं इसमें, तो सबसे पहले ये कि हम घर में हमें कहीं फॉर एग्जांपल कुछ बैड स्मेल आ रही है. अब हम चाहते हैं कि वो बैड स्मेल निकले और हमें नहीं मिल रहा उसका कॉज, उसका सोर्स, तो हम एयर फ्रेशनर इस्तेमाल कर लेते हैं एंड वी बिकम हैप्पी कि वी गॉट रिड ऑफ दैट बैड ऑडर. लेकिन एक्चुअल में वो स्मेल अभी भी वहां है. जब एयर फ्रेशनर खत्म होगा तो वो फिर आना शुरू हो जाएगी. तो क्या है कि हमने स्मेल को तो रिमूव नहीं किया, लेकिन हमने टेम्पररी मेजर्स ले लिए. तो यही होता है कि हम बाज़ औक़ात हमें लगता है कि अब तो मैं जिम भी कर रही हूँ, अब तो मैं फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मैंने जॉब स्टार्ट कर ली है एंड आई एम आउट ऑफ दैट एनी पास्ट ट्रॉमा और एनी नेगेटिव थिंकिंग्स. लेकिन जब अचानक से कोई वैसी सिचुएशन हमारे सामने से गुजरती है या कोई चीज़ हमें बुरी लगती है, तो हम दोबारा से उसी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं जिसमें हम पहले थे. तो इसलिए हमें एनएलपी में आज देखना है कि एनएलपी को किस तरह हम अपने एक लाइक अ यूजर मैनुअल यूज कर सकते हैं. जैसे एक मशीन के साथ मैनुअल आता है ना, हाउ टू ऑपरेट दैट, तो एनएलपी हमें हमारे ब्रेन के लिए एज अ यूजर मैनुअल है ये. और डेली कम्युनिकेशन में हम इसको बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे रिलेशंस और हमारी डेली लाइफ और हमारी मेंटल जो
कैपेबिलिटीज हैं उन सब में बहुत फाका होता है। और इस तरह हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर्स वगैरह सब बहुत कम होते जाते हैं। अच्छा, हमें अब थोड़ा सा अपने ब्रेन को देखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्चुअली हमारा ब्रेन काम करता है इमेजेस के साथ, सिंबल्स के साथ। ब्रेन के पास अपने कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, ब्रेन पिक्चर्स के साथ काम करता है और उन सिंबल्स को अपने अंदर स्टोर करता जाता है। अब ये बिल्कुल ऐसे है ना जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसके पास कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन वो चीजों को समझता है और वो अपनी बात मनवा भी लेता है बगैर कुछ बोले, और वो अपने एक्सपीरियंसेस को वक्त के साथ साथ हमें शो कर रहा होता है कि ही इज लर्निंग समथिंग। बिल्कुल इसी तरह एडल्ट्स का ब्रेन भी लैंग्वेज नहीं रखता, लेकिन पिक्चर्स और इमेजेस को सेव करता जाता है और उससे फिर हमारी इमोशंस बनती हैं और उसी से फिर हमारी फीलिंग्स बनती हैं और उससे फिर हमारा पूरा एक माइंडसेट बनता है। अच्छा, अब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को किस तरह अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? हम इसको दो तरह से अप्लाई करते हैं। एक हम अपने ऊपर खुद अप्लाई करते हैं और एक हम इसको दूसरों के लिए अप्लाई करते हैं। तो पहले हम इनर सेल्फ को देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनर सेल्फ के एग्जाम्पल जो है वो अगर ऐसे लोग जिनके लिए साइकोलॉजी की टर्म्स मुश्किल हो तो मैंने उनके लिए इसको फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कहा बहुत आसान होगा हमारे लिए समझना, क्योंकि हम सब ने ये टर्म्स सुनी होती हैं, नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमइन्ना। इन्हीं को साइंटिफिक टर्म्स भी एक्सप्लेन करती हैं टू एक्सप्लेन आवर इनर सेल्फ। सबसे पहले है नफ्से अम्मारा। दिस इज द कमांडिंग सेल्फ, कमांडिंग सोल। ये हमें हुक्म देता है, हमसे अपनी मर्जी के काम करवाता है और यूजुअली हम अपने रिलीजन में कहते हैं कि ये हम इसके गुलाम बन जाते हैं और इसी से हमें हमारी जो डिप्रेशन और हमारी एंजाइटी है वो इसके साथ बहुत लिंक्ड होती है, नफ्से अम्मारा के साथ। तो एनएलपी के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड है नफ्से लव्वामा, द एक्यूजेटरी सेल्फ होता है ये, यानी जैसे हमें गिल्ट फीलिंग आती रहे और आवर इनकॉन्शियस इज एक्टिव एंड वी बिकम अवेयर ऑफ आवर रॉन्ग डूइंग्स। तो ये भी जो एक्विजिटरी सेल्फ है इसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं थ्रू एनएलपी, क्योंकि बार बार गिल्ट का आना भी हमारे जो कैपेबिलिटीज होती हैं उन पे इफेक्ट डालता है। थर्ड है नफ्स मुतमइन्ना। इट इज द आइडियल स्टेट ऑफ पीस। इसमें अमन है, इसमें इत्मीनान है। तो हमें एक तरह से यानी हमारे रिलीजन में ही इनर टर्मोइल के तरीके बहुत सारे मिलते हैं। मैं साथ साथ उनको भी आगे डिस्कस करती रहूंगी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। तो कमिंग बैक टुवर्ड्स द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम इसमें ये देखते हैं कि जैसे सूरज हमें नजर आता है तो हमारे जहन में क्या सूरज के साथ एक हमारी एसोसिएशन होती है कि हम कहते हैं कि ये लाइट देता है, ये हीट देता है। अब उसके आगे क्लाउड आ गया तो हमें थोड़ी अच्छी सी फीलिंग आ गई कि वो चुभन वाली जो रोशनी थी, खासतौर यूएई में तो बहुत होती है इस तरह की लाइट, तो थोड़ी कम हुई हल्की सी। अब क्या हुआ कि मल्टीपल लेयर्स आ गए क्लाउड्स के, तो अब हमें एक फीलिंग आएगी कि थंडरस्टॉर्म हो सकता है, रेन हो सकती है और मौसम हमें बहुत खुशगवार लग रहा होता है। सेम यही मेटाफोर हम अपने माइंड, अपने ब्रेन के लिए अप्लाई करते हैं। किस तरह से कि हम हमें लगता है कि हम हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, जैसे सन के अंदर एक फुल कैपेसिटी है कि वो हीट प्रोवाइड कर सकता है, वो लाइट, उसकी वो कैपेसिटी कम नहीं हुई है किसी भी तरह। ये सिर्फ क्लाउड्स की लेयर्स आई हैं, बैरियर्स आए हैं जिन्होंने उसकी कैपेसिटी को हिंडर किया है। इसी तरह जब हमारे आगे भी क्लाउड्स की लेयर्स और बैरियर्स आते हैं तो हमारी कैपेसिटी भी हिंडर हो जाती है, हालांकि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल होता है। अब वो क्या बैरियर्स होते हैं? एक होता है नेगेटिव थिंकिंग का बैरियर। बहुत सारी हमारी इवन हम अपने अल्फाज से बहुत कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि अगले इंसान, लोग कहते हैं कि इसकी तो बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है। तो क्या होता है कि हम बातों में भी नेगेटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि मुझे झूठ से नफरत है, हाँ ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, अगले बंदे सुन के कॉन्शियस हो सकते हैं कि इसके सामने झूठ नहीं बोलना, लेकिन इस सेंटेंस में मैंने दो नेगेटिविटीज बोली हैं, झूठ और नफरत। तो ये क्या है कि ये दूसरों को मेरे से रिपेल कर सकता है, उनको, यानी इट शोज कि मुझ में लोगों की तरफ लैक ऑफ ट्रस्ट है और मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत है। इसी की तरह मैं दूसरा सेंटेंस बोलती हूँ कि मुझे सच्चाई बहुत पसंद है। अब इसमें मैंने टू पॉजिटिविटीज बोली, एक एक्सेप्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी की मैंने बोली कि आई कैन एक्सेप्ट थिंग्स, मुझे पसंद है, और सेकेंडली सच्चाई, ऑनेस्टी, आई लाइक ऑनेस्टी। तो ये मेरी पर्सनैलिटी, मेरी थिंकिंग को फॉर्मुलेट करके लोगों के सामने ला रहा है कि हाउ पॉजिटिव आई एम इन माई वर्ड्स। दिस इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ब्रिंगिंग द थॉट्स ऑफ ब्रेन इनटू माय लिंग्विस्टिक्स।
तो पहला क्लाउड हमारा होता है ये नेगेटिव थिंकिंग का, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव इमोशंस का। इसके लिए फिर एनएलपी में टाइमलाइन थेरेपीज चलती हैं। और नेगेटिव इमोशंस होते क्या हैं? यूजुअली बिट्रेयल, फियर, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी। जैसे कभी कोई हादसा हुआ और बस उसके बाद सोचना कि मैं तो गाड़ी चला ही नहीं सकती, हालांकि ड्राइविंग उस वक्त भी आती थी और अभी भी आती है, कैपेबिलिटी उतनी ही है, लेकिन वो फियर बैठा हुआ है कि जब मैं ड्राइविंग सीट पे होंगी तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है। सो दिस इज द नेगेटिव इमोशन, एक इमोशन स्टक हो गई है वहां पर हमारे अंदर। फिर होता है इसके बाद एक और क्लाउड जो हमारे आगे आता है, वो होता है लिमिटिंग बिलीफ्स का क्लाउड। जैसे कि स्टेज पर मैं जाऊं तो मेरे तो हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, मुझे रात से ही पेल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, आई कांट डू दिस। अब ये जो है, आवाज भी है मेरे पास, नॉलेज भी बहुत है, बात भी बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकती हूँ, लेकिन जस्ट एक लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं नहीं कर सकती। ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ एक बैरियर है जैसे सनलाइट के आगे, और इसको रिमूव करना एनएलपी के थ्रू इट इज पॉसिबल। और फिर फोर्थ होता है हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अंदर की जंग। ये वही जो नफ्स लवामा मैंने पीछे जिक्र किया ना, एक्यूजेटरी सेल्फ, इट इज लाइक दैट। ये इंटरनली हमें शटर कर रहा होता है, हमारे अपने अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा होता है। जैसे एक जॉब कर रहे हैं, वो करना नहीं चाहते लेकिन उसको किए जा रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं और ड्यूरिंग द जॉब भी सोचते रहते हैं कि मैं कोई अच्छी जॉब कर लेती तो मैं बहुत बेहतर जगह पे होती। तो क्या था कि वो एक लिमिटिंग बिलीफ था कि बस यही मिल गई है और तो पता नहीं कोई शायद मिलेगी नहीं जॉब। तो इस तरह के लिमिटिंग बिलीफ्स बहुत से होते हैं जो एज अ क्लाउड हमारी कैपेबिलिटीज के सामने आ जाते हैं और हमें हिंडर करते हैं। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करते हुए हम इसमें मैं अब इन फियर्स फोबियाज के ऊपर थोड़ा सा बात करते हुए, वैसे तो डजन्स एंड डजन्स ऑफ टेक्निक्स हैं न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, लेकिन मैं आज कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करूंगी जो कि बहुत हैंडी हैं और जिनको हम डे टू डे एक आम इंसान, ले मैन कैन अप्लाई इन हिज और हर लाइफ। सबसे पहली है डिसोसिएशन टेक्निक। इस वर्ड जो डिसोसिएशन है, ये अपना मीनिंग खुद शो कर रहा है कि मुनकते हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना विद समवन। एंड दिस इज यूज फॉर द पास्ट फोबिया क्योर। इसको हम पास्ट के लिए मोस्टली यूज करते हैं। मोस्टली इसमें जैसे कोई थ्रेटनिंग मेमोरी है तो उसको हम नॉन थ्रेटनिंग मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस डिसोसिएशन टेक्निक के थ्रू। इसमें सबसे पहले तो मैं बहुत आसान दूंगी जो कि बहुत ही इजी है, और वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमें एक हैबिट है कि नेगेटिव थिंकिंग, बैठे बैठे घर में मोस्टली हाउसवाइफ्स अकेली हैं या ऑफिस में जो वर्किंग लेडीज थोड़ी देर के लिए फारिग हुई हैं, तो नेगेटिव थिंकिंग एक कॉन्टिन्यूसली उनके माइंड में डेवलप होना शुरू हो जाती है। कोई पिछले यादें, ख्यालात, बहुत बुरा हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला, उस सोच में मगन हुए में अचानक से खुद को प्रेजेंट स्टेट में लेके आए। फॉर एग्जाम्पल मेरे आगे टिश्यू का डिब्बा रखा हुआ है और मैं सोचूं कि ये यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा, इसको मैं राइट कॉर्नर पे रख देती हूँ। बहुत ही यूजलेस किस्म का काम है ये, कोई बात नहीं, टिश्यू का डिब्बा यहाँ भी अच्छा लग रहा था। बट द थिंग इज कि मैंने अपने आप को प्रेजेंट स्टेट में मैं लेके आई डिस्कनेक्टेड दैट थॉट प्रोसेस। अब अगर इसमें हम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लाइक हम खुद को कह सकते हैं कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो हमारी वो जो थॉट है वो वहीं पे कैंसिल हो जाएगी, लाइक अ कमांड। ये हमने यहाँ पे नफ्से अम्मारा का इस्तेमाल किया, वी बिकेम आवर ओन कमांडर्स। तो हम अपने आप को कैंसिल 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 भी कह सकते हैं, या हम इस तरह कोई सामने रखी हुई किसी चीज की तरफ अपनी अटेंशन ला सकते हैं। वी डिसोसिएटेड आवरसेल्फ फ्रॉम दैट नेगेटिव थिंकिंग। सेकंड थोड़ी सी इसकी जरा प्रैक्टिस करने के साथ आएगी, उसके लिए ये है कि डीप ब्रीदिंग करनी होगी। टेक अ फर्स्ट डीप ब्रेथ इनसाइड एंड होल्ड इट फॉर फ्यू सेकंड्स एंड देन एक्सहेल इट स्लोली आउट ऑफ द माउथ। इसको करते हुए आंखें बंद रखनी है और 3 4 5 इस तरह से डीप ब्रीदिंग्स करनी है। ये डीप ब्रीदिंग्स क्यों जरूरी है? इसके बगैर भी तो हो सकता था, इसलिए कि हमारी ब्रेन की एक खास फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा। इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, बस एक छोटा सा है कि डेल्टा में हम होते हैं जब हम सो रहे होते हैं, बीटा में होते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, और सॉरी बीटा में जब हम होते हैं जब हम डेली रूटीन में होते हैं, और गामा में हम बहुत खुश होते हैं जब वो जो वजदान की कैफियत होती हैं और इस तरह की। और जो अल्फा होती है, अल्फा टेक्निक जो है, ये हम अटेन करते हैं जब हम बिफोर स्लीप, हमारा मूड जब जा रहा होता है, क्या होता है, माइंड कूल एंड काम हो रहा होता है। तो वो हम नॉर्मल डे प्रैक्टिस में कैसे कर सकते हैं कि हम डीप ब्रीदिंग कर लें। ठीक है, हमने डीप ब्रीदिंग की, हमारा माइंड खुद ब खुद अल्फा स्टेट पे चला गया, कूल एंड काम स्टेट पे चला गया, देन वी कैन डू व्हाट वी वांट, वी कैन एक्सरसाइज दिस टेक्निक।
अब क्या करना है, हमने माइंड कूल एंड काम किया, तो उस पास्ट ट्रॉमा को हमने अपने सामने एक स्क्रीन पे इमेजिन करना है, जस्ट लाइक सिनेमा में जैसे हम मूवी देख रहे होते हैं, जस्ट आई एम सिटिंग इन सिनेमा ऑन अ चेयर और दैट मूवी इज रनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। उस बैड मोमेंट को मैंने उस पूरी मूवी को फुल कलर्स के साथ और फुल उसमें वाइब्रेंट है वो, उसमें मेरे इमोशंस भी मुझे बहुत अच्छी तरह फील हो रहे हैं, वो पास्ट जो ट्रॉमा का सीन है वो मैं देख रही हूँ। थोड़ी देर में मैंने फील करना है कि वो जो सीन है उसमें कलर्स डिम होते जा रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होता जा रहा है, वॉइस जो है वो डिस्ट्रैक्टेड होती जा रही है, वो स्क्रीन पे बहुत डिम और कलरलेस बिल्कुल हो चुका है, और बल्कि कि बहुत हल्का सा मुझे नजर आ रहा है। अब मैंने उसको डिम करना शुरू कर देना है, डिम हो गया, अब मैंने उसको श्रिंक करना शुरू कर देना है। श्रिंक करते 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 स्क्रीन पे एक डॉट की तरह वो आ जाएगा। उसके बाद मैंने स्क्रीन बिल्कुल व्हाइट कर देनी है, जैसे सिनेमा की एंड में मूवी खत्म हो जाए तो स्क्रीन व्हाइट हो जाती है। और उसके बाद यानी मैंने उस सीन को सिर्फ अपने आप को उससे बाहर बैठ के देखा है और मैंने उसको खत्म किया है। उसके बाद फिर से मैंने डीप ब्रीदिंग्स करनी है, इनहेल डीपली, hold it inside for a few seconds and then exhale it out, ठीक है, and then open the eyes। अब ये मैंने क्या किया, मैंने मेमोरी को इरेज नहीं किया है, मैंने मेमोरी की इमोशंस को कम किया है। वो जो उसमें वाइब्रेंट कलर्स थे वो उस वजह से वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। इसकी डिसोसिएशन की मैं तो 2-3 टेक्निक्स बता रही हूँ, इसमें बहुत ज्यादा है। एक जैसे और मैं छोटी सी टेक्निक मेंशन कर दूं कि फॉर एग्जांपल बचपन का ट्रॉमा था कोई, इन माई चाइल्डहुड समथिंग हैपेंड वेरी बैड विद मी, तो अब मैंने अपने प्रेजेंट ओल्डर सेल्फ को वहां उस सिनेमा की चेयर पे बिठाना है और मैंने अपने सामने उस वो जो स्क्रीन चलानी है उसमें मेरा वो चाइल्डहुड होगा, वो मैं छोटी बच्ची हूँ उसमें, और मैंने अपने आप को ये बार बार रिपीट करना है उस चेयर पे बैठकर कि ये तो मैं बच्ची थी, अब तो मैं इससे डिस्टेंस पे आ चुकी हूँ, नाउ आई एम अ ग्रोन अप मैच्योर पर्सन। अगर उस वक्त मैं इस तरह होती तो मैं बेटर डिसीजंस ले सकती थी, या नाउ आई एम एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दैट थ्रेट। तो इस तरह करके फिर उसको वैनिश कर देना है उस सीन को। फिर से डीप ब्रीदिंग करनी है और एक्सहेल कर लेना, एक्सहेल करते हुए आंखें खोल देनी है। तो ये मैंने डिसोसिएशन की 2-3 टेक्निक्स बताई हैं जो कि हमें पास्ट ट्रॉमा जो कंटिन्यूअसली हमें हर्ट कर रहा होता है, चुभ रहा होता है, उसके जब तक हम रूट कॉज से उसको हटाएंगे नहीं ना, तो वो एयर फ्रेशनर स्प्रे होता रहेगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रूट कॉज पे जाके हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, और इसकी मल्टीपल टाइम ये हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑल्दो विद वन प्रैक्टिस भी हमें फील होगा कि टुडे आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स एंड एक्सेट्रा। तो इसके बाद नेक्स्ट अब हम आते हैं रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग क्या होती है कि इसकी मैं अगर एग्जांपल दूं तो जैसे मोस्टली ट्रैफिक में हम स्टक हो जाते हैं, और जब ट्रैफिक अचानक स्टक हो गई, हमने कहीं टाइम पे पहुंचना था, तो पहला सेंटेंस हमारे मुंह से क्या निकलता है कि उफ इतनी ट्रैफिक, अब तो हम लेट हो जाएंगे। अब हमने इसको रीफ्रेम करना है, जैसे हमने कहना है कि साथ कोई बैठा हुआ है, उसको कहना है कि हम दोनों ने फलान टॉपिक डिस्कस करना था, बहुत इंपॉर्टेंट वो बात डिस्कस करनी थी, तो अभी कर लेते हैं। या स्कूल से बच्चों को लेके घर आ रहे हैं तो उनसे डिस्कस कर लिया स्कूल की एक्टिविटी क्या है, या उनको कोई मॉरल स्टोरी उस छोटे से टाइम स्पेन की सुना दी, या कोई उनकी स्कूल की पोएम उनके साथ कर ली, एनीथिंग। अब क्या हुआ, हमने सिर्फ एक स्टार्ट में सेंटेंस चेंज किया था कि अब हम डिस्कस कर लेते हैं, और हमने वो सेंटेंस नहीं बोला था कि उफ इतनी ट्रैफिक। क्या हुआ, पूरी गाड़ी में सबका जो मोरल है वो अप रहेगा, किसी को परेशानी नहीं होगी कि ट्रैफिक में हम स्टक हुए हैं, और टाइम किस तरह पास हो जाएगा वी विल नेवर नो दिस। फिर इसकी एक एग्जांपल ये है कि मोस्टली हम देखते हैं कि जब कोई क्रिकेट मैच है, कोई फुटबॉल वगैरह का है, तो उससे पहले प्लेयर्स के पास मीडिया के लोग जा रहे होते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक अक्सर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर यू स्ट्रेस्ड, और वो आगे से कहते हैं कि आई एम सुपर एक्साइटेड। अब क्या है, दोनों में फीलिंग्स तो सेम है, स्वेटी हैंड्स हैं दोनों में फास्ट हार्ट बीट हो रही है, दोनों में ब्रेथ शॉर्ट हो रही है, लेकिन उन्होंने जस्ट एक फ्रेज को चेंज कर दिया है, सेंटेंस को रीफ्रेम कर दिया है। उसने बोला था कि आर यू स्ट्रेस्ड, तो इन्होंने कहा कि आई एम सुपर एक्साइटेड। अब जब वो ग्राउंड में जाएंगे और परफॉर्म करेंगे तो खुद ब खुद उनका परफॉर्मेंस लेवल जो है वो बहुत हाई आएगा। तो ये जो टेक्निक है रीफ्रेमिंग की टेक्निक, ये हम अपने आप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए खास तौर पे एग्जाम डे में यूजुअली बच्चे पैनिक हो रहे होते हैं, तो ये टेक्निक हमें उनके साथ रिलेटेड टू पेपर्स हम सेंटेंसेस को रीफ्रेम करके उनको मोटिवेट करके घर से भेज सकते हैं। इसी तरह हमारे अपने साथ कुछ अनवांटेड चीज हो गई, घर में अचानक से मेहमान आ रहे हैं, द हाउस इज डर्टी एंड देयर इज नथिंग टू सर्व देम, और हम अचानक उस वक्त
परेशान हो जाते हैं, तो उस वक्त भी रीफ्रेम कर लें कि ओ अच्छी गॉसिप होगी, वैसे मैं बहुत बोर हो रही थी इतने दिनों से, लाइक दिस। हम किसी भी तरह एक पॉजिटिव सेंटेंस वहां पे लेके आए। हालांकि काम हमें करना पड़ रहा है, हम भाग भी रहे हैं, हम घर भी ठीक कर रहे हैं, हम कुकिंग का भी सोच रहे हैं, बट वी हैव जस्ट रीफ्रेम दैट फर्स्ट सेंटेंस, और उससे हमारी परफॉर्मेंस, हमारा मूड विद आवर गेस्ट, एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। फिर इसी तरह हमें प्रॉब्लम्स लाइफ में जब आए तो अगर उसको भी हम रीफ्रेम कर दें, प्रॉब्लम को हम चैलेंज का नाम दे दें, वी कन्वर्टेड द प्रॉब्लम इनटू द चैलेंज, तो हमने उसको रीफ्रेम कर दिया, तो इस तरह से भी हमारी परफॉर्मेंस उस प्रॉब्लम सोल्यूशन में अच्छी रहेगी। फिर ये जो रीफ्रेमिंग टेक्निक है, ये हमें नफ्स लवामा, जो बेचैन दिल होता है, जो एक्यूजेटरी सेल्फ है, जो बार बार गिल्ट फीलिंग से हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसमें ये जो रीफ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस है कि कुछ याद आ रहा है उसको रीफ्रेम कर दें, कुछ डिस्टर्ब कर रहा है उसको रीफ्रेम करते जाएं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। फिर थर्ड पे है एंकरिंग टेक्निक। इट इज लाइक कनेक्टिंग अ ट्रिगर विद अ रिस्पॉन्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब एंकरिंग को हम इस तरह देख सकते हैं ना, जैसे अगर मैं इसको मेटाफोर में यूज करूं, तो मुझे अगर कहा जाए कि अपने बच्चों की पैदाइश का मैं सोचूं, तो इफ आई थिंक ऑफ दूसरे के साथ किड्स की बर्थ का ख्याल आया, तो साथ ही वो छोटा सा बेबी मेरे सामने जो आया और जो मैं खुश हुई उसको फर्स्ट टाइम होल्ड करके, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एंकरिंग। अच्छा, अब हमें लेमन के बारे में क्या इमेजिन कर सकते हैं, हमें उसका कलर, उसकी शेप, उसका जो इनर स्ट्रक्चर है, इवन जब वो कट जाता है, और इसकी खुशबू तक हमें महसूस होगी, यहाँ तक कि मुंह में खटास भी आ सकती है, तो ये क्या है, हमारी लेमन के साथ एंकरिंग हुई भी है। फिर इसी तरह हमें अगर मैंगो के बारे में आए, तो हमें मैंगो की भी स्वीटनेस तक फील हो जाती है, तो ये एंकरिंग जो है ऑलरेडी हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। फिर इसी तरह अगर हम कोई खास गाना सुनते हैं, तो उसके साथ हमारे सेंटीमेंट जुड़े होते हैं, हम फौरन उस एक खास मूड में चले जाते हैं उसके साथ। बेसिकली क्या है कि किसी भी एक्सटर्नल चीज के साथ या किसी अंदर के इंटरनल ट्रिगर के साथ हमारा जुड़ा होना, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो फीलिंग हमारे सामने आ जाए। अच्छा, एंकरिंग टेक्निक में अब हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को नेगेटिव थिंकिंग की आदत है, तो वो इसमें भी एंकरिंग को अप्लाई कर सकता है कि अगर मैं बैठे बैठे नेगेटिव सोचती हूँ ना, तो मैं फौरन से अपने आप को चुटकी काटूंगी। या किसी को कोई बैड वर्ड यूज करने की आदत है, फॉर एग्जाम्पल कोई होता है, हम बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, बाज लोग कहते हैं कसम से, मैं कसम खाती हूँ हर बात में, इस तरह, एंड शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, तो वो कहेगी कि अब मैं जब भी बोलूंगी कि मैं कसम खाती हूँ, तो मैं खुद को चुटकी काट दूंगी। अब वो बैठी है उसने ये वर्ड बोला और उसने टांग पे खुद को चुटकी काट दी। अब क्या होगा, वो बार बार रिपीटिशन में ये कर रही है, तो जैसे ही ये वर्ड उसके मुंह से कुछ टाइम के बाद निकलने लगेगा, तो खुद ब खुद उसको वो पेन याद आ जाएगा। तो क्या हुआ, कसम खाने के साथ पेन रिलेट हो गया, खुद ब खुद ये हैबिट निकल जाएगी। अच्छा, हम यहाँ तक आए थे कि हमने ट्रिगर को स्टैब्लिश किया है, फिंगर्स को ज्वाइन किया है, और हम बार बार उस मोमेंट को सोच रहे हैं, और वो फीलिंग को खास तौर पे हम इमेजिन कर रहे हैं, व्हेन आई वाज एट माय मैक्सिमम पीक ऑफ हैप्पीनेस और एट कॉन्फिडेंस लेवल। जब वो फीलिंग हम मजीद उसको नहीं सोच सकते, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ खोल देंगे। अब क्या करेंगे, इसकी 4, 5, 6 प्रैक्टिसेस करनी है। कल फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन है या कोई पब्लिक स्पीकिंग करनी है, एनी सच थिंग, तो आज के दिन में हमने 4, 5 प्रैक्टिसेस करते रहना है। फिर हमने उसको थोड़ा सा टेस्ट करना है, बैठे बैठे फ्रेंड्स के साथ, या रात को डिनर टेबल पे बैठे हैं, बैठे बैठे वो फिंगर्स क्रॉस कर लेनी है उसी तरह, और फील करने की कोशिश करनी है। तो ये टेस्ट हो गया हमारा कि यस, आई एम डूइंग इट परफेक्ट, मेरा जो NLP की टेक्निक है वो काम कर रही है। तो अब जब हम स्टेज पे जाके खड़े होंगे, तो ऑटोमेटिकली हम जब वहां पे फिंगर्स जरा सा क्रॉस करेंगे अपनी बात शुरू करने से पहले, तो खुद ब खुद हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एंकर डेवलप नहीं हो पा रहा होता, तो उसके लिए ये है कि कॉन्टिन्यूअस कुछ दिन प्रैक्टिस करना पड़ती है। फिर कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि बहुत सवेयर इंटेंस फियर और फोबिया होता है उनको, तो उनके लिए फिर ये है कि 2-3 टेक्निक्स उनको डिफरेंट साथ अप्लाई करनी पड़ती हैं। जैसे डिसोसिएशन भी साथ उनको करनी होगी, कोई पास्ट इवेंट था जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज कर गए,
फिर उनको रीफ्रेमिंग सेंटेंसेस भी यूज करने होंगे और उनको एंकरिंग भी करनी होगी, यानी मल्टीपल फिर वो यूज करेंगे, देन दे विल अटेन द रिजल्ट। और अब हम फोर्थ पे आते हैं, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज मेटा पोजिशन, ये फोर्थ टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड लगा दें प्लीज। इट इज द लोकेशन, मेटा पोजिशन जो है, इट इज द लोकेशन आउटसाइड द सिचुएशन। मेटा मीन्स बियॉन्ड सेल्फ पोजिशन, यानी अब हम बच्चे थे जब स्कूल में, इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ एक, तो टीचर कहती थी कि ये कहानी लिखें, अब कोई टॉपिक मिल गया, अब जहन में कुछ भी नहीं आ रहा कि क्या लिखूं मैं, तो अपना ही घर का गुजरा हुआ, कोई अपना फ्रेंड्स के साथ गुजरा हुआ कोई इवेंट हम पकड़ते थे और उसके आगे पीछे एक दफा का जिक्र करके तो हम वो कहानी में, नेम भी चेंज होता था ऑब्वियसली, हमारा नाम नहीं होता था, XYZ करके हम एक कहानी बना के टीचर को दे देते थे। तो ये मेटा पोजिशन क्या है, ये हम अपने ही इवेंट को एज अ थर्ड पर्सन एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह क्या होता है, हमारी उस इवेंट्स के साथ जो है अटैचमेंट कम हो जाती है। हम उस इवेंट के साथ लेस इमोशनल हो जाते हैं। अभी पीछे हमने डिसोसिएशन टेक्निक पढ़ी थी कि हम किस तरह खुद को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं किसी पास मेमोरी के साथ, तो ये मेटा पोजिशन भी उसी की तरफ वन स्टेप अहेड है, उसके साथ साइड बाय साइड भी हम कर सकते हैं अलॉन्ग विद डिसोसिएशन, और एज सेपरेट टेक्निक भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो क्लाइंट्स हैं, खासतौर पे एहसास फोरम पे जो लेडीज हैं उनको मैं पर्टिकुलरली कहूंगी, या घर में हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, एनी सच थिंग, सिबलिंग्स हैं हमारे, एनी पर्सन जिसके साथ हम उसका कोई प्रॉब्लम सुन रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो इस प्रॉब्लम से डिसोसिएट नहीं हो सकता, डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, तो हमने उसकी कहानी सुन ली। अब हमने उसको कहना है कि अच्छा इस कहानी को ना दोबारा बयान करो, लेकिन इसमें नाम चेंज कर दो, मैं कहने की बजाय XYZ कोई नाम बता दो और पूरी कहानी उस XYZ से रिलेट करके मुझे दोबारा सुनाओ। अब जब वो सुनाना शुरू करेगा कि वो XYZ के साथ ये हुआ, XYZ के साथ उसने बहुत बुरा किया, XYZ को उसने ये सुनाई, ब्ला ब्ला ब्ला, उसने अपनी स्टोरी सुनाई, एंड तक पहुंचते पहुंचते जब हम उससे पूछेंगे अच्छा इसमें XYZ को फिर क्या करना चाहिए था, वो खुद ब खुद अपना सोल्यूशन दे देगा। वो कहेगा हाँ मेरे ख्याल में XYZ की भी थोड़ी सी गलती थी इसमें, या मेरे ख्याल में XYZ इसमें बेहतर रिएक्ट कर सकती थी, उसको खुद ब खुद सोल्यूशन सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेटा पोजीशन पे चला गया, उसने अपने आप को निकाला उस स्टोरी में से, और जब डिस्कनेक्ट हुआ तो इमोशंस भी जाहिर है डिस्कनेक्ट हो गई। जब वो स्टोरी के अंदर था तो उसको लग रहा था उस पर बहुत जुल्म हुआ है, बहुत बुरा हुआ है उसके साथ, जब बाहर निकला इमोशंस डिसोसिएट हुए तो ही मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन हिमसेल्फ। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत पावरफुल। अक्सर ये क्लाइंट से या किसी भी पर्सन से डिस्कस करते हुए उसके प्रॉब्लम को, ये हमारे बहुत काम आती है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। रेपो, रेपो को मैंने लास्ट टेक्निक रखा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ये थोड़ी सी इस पे मैंने ज्यादा बात करनी है, इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज लगा दें। रेपो, रेपो क्या है, स्पेशली फॉर द काउंसलर्स इट इज वेरी हेल्पफुल। और ये रेपो का वैसे तो वर्ड हम सबने सुना हुआ है, ठीक है, वी ऑल आर फेमिलियर विद रेपो बिल्डिंग। इट इज फाइंडिंग द सिमिलैरिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ अ कन्वर्सेशन and it is like the ability to enter someone's world। किसी के साथ फेमिलियर हो जाते हैं हम, उसके साथ हमारा एक बॉन्ड बन जाता है बिफोर स्टार्टिंग कन्वर्सेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आजकल की जो मॉडर्न रिसर्च है उससे हमें एक चीज पता चलती है, हम तो समझते हैं ना शायद मैं बात कर लूंगी तो मेरी बात में बड़ा असर होगा और मैं पूरी बात अपनी कन्वे करके आ गई हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी जो बात है वो सिर्फ 7% इम्पैक्ट रखती है। The verbal language has only 7% impact। 38% लोग हमारी टोन ऑफ वॉइस के साथ हमारी जो बात है वो उन तक जाती है, और 55% जो हमारी बात अगले पर असर करती है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू असर करती है। तो इट इज नॉट ओनली द टॉक दैट इन्फ्लुएंसेस अदर्स, इट इज द टॉक, द टोन ऑफ द वॉइस एंड द बॉडी लैंग्वेज, इन सब का इम्पैक्ट अगले इंसान पर हो रहा होता है। इसीलिए रेपो बिल्डिंग बहुत जरूरी है किसी इंसान से बात करते हुए। अब जैसे अगर काउंसलर्स हैं तो क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड करते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई सेल्समैन है या ऑफिस में जॉब करने वाले हैं, तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए क्या होता है, पहले स्माइल दें उनको, थोड़ी सी उनके साथ कैजुअल टॉक करें, खैर खैरियत पूछ ली, मौसम का हाल पूछ लिया, तो अब क्या हुआ कि क्लाइंट रिलैक्स हो गया, उसको हमारे साथ बात करते हुए आसानी फील हो रही है। और फिर
अच्छा, अगर हम एज अ मुस्लिम भी देखें तो हमें इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मिलती है कि बीइंग अ मुस्लिम हम एक दूसरे को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तो क्या हुआ कि अस्सलाम वालेकुम कहने से भी खुद ब खुद हमारा एक अपनाइयत का रिलेशन आपस में बन जाता है। तो दिस आल्सो गिव्स अस a good example for the rapport building, and it is a very powerful tool अस्सलाम वालेकुम कहना। फिर इसकी और एग्जांपल रैपो बिल्डिंग की, कि बात किस तरह शुरू करनी है, किस तरह रिलेशन बिल्ड करना है, किस तरह कॉमन ग्राउंड रखना है आपस में, इसकी हमें एक एग्जांपल मिलती है कुरान पाक में। अब क्या हुआ, कुरान पाक में सबसे पहले आई मक्की सूरतें। तो मक्का में जो सूरतें नाजिल हुई थी उनमें तौहीद के बारे में जिक्र था, जन्नत दोज़ख के बारे में जिक्र था, अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन उनमें हमें बहुत मिलता है। तो क्या था कि ग्राउंड नरम हो रहा था, दिलों को नरम किया जा रहा था। फिर उसके बाद आई मदनी सूरतें। मदनी सूरतों में कोड ऑफ लाइफ आया, लॉज ऑफ शरिया आए। तो ये इसलिए कि उस वक्त तक जाते जाते मैक्सिमम लेवल ऑफ ओबीडियंस ही आ चुका था मुस्लिम्स में। तो अब जो भी रूल आता था, जो भी नया लॉ आता था, तो वो बहुत इजीली उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते थे। फिर इसी तरह कुरान पाक में हमें अल्लाह ताला का एक बहुत खूबसूरत वे ऑफ कम्युनिकेशन मिलता है। जब वो कोई खास बात करना चाहते हैं तो रादर वे ऑफ एड्रेसिंग कहना चाहिए हमें इसको, कि वो कहते हैं या युहन्नास, ए इंसानो। फिर वो कहीं कहते हैं या युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू हु बिलीव, ए ईमान वालो। तो हम फॉरन अलर्ट होते हैं, इट इज समथिंग ही इज सेइंग टू अस पर्टिकुलरली, कोई हुक्म है, कोई बात है जो वो कहना चाह रहे हैं। फिर इसी तरह वो खास तौर पे बहुत ज्यादा जब मोहब्बत शो करना चाहते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि या इबादी, ए मेरे बंदो। तो वहां पे बिल्कुल जैसे सुनने वाले जो हैं वो सरेंडर कर जाएं कि अल्लाह ताला हमें क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर इसी तरह सूरा आल इमरान में हमें इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मिलती है कि जब जो पीपल ऑफ बुक हैं, अहले किताब, जो दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं, जब उनसे बात करनी हो तो कॉमन ग्राउंड से बात स्टार्ट करें, लाइक अल्लाह ताला, प्रॉफिट्स, हेवन, हेल, जो उनमें और हम में कॉमन है रिलीजन में, वहां से अगर हम बात स्टार्ट करेंगे तो हमारी उनसे रेपो बिल्डिंग हो जाएगी। फिर हमारी उनसे कोई बहुत ज्यादा बहस नहीं होगी, या उनको अपने रिलीजन की तरफ हम प्रीच करना चाह रहे हैं तो उसमें हमें आसानी होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम रेपो बिल्डिंग में देखते हैं कि हमने किस तरह से बात करनी है। अगर अगले इंसान के साथ हम बैठे हुए उसके सामने, तो हमने कोशिश करना है कि हम उसके साथ उसके कीवर्ड्स को कैच करें। जो वो कीवर्ड ज्यादा बोलते हैं हम भी उसी तरह के कीवर्ड्स उसके साथ बोलें। इसको कहते हैं मैचिंग एंड मिररिंग टेक्निक। उसको बहुत ज्यादा फोल्डिंग आर्म्स की आदत है, हम उसके सामने हम भी फोल्ड आर्म्स 2-3 मिनट के लिए कर लें। उसने राइट पे देखने की उसको ज्यादा आदत है, तो हम भी उससे बात करते हुए थोड़ा राइट की तरफ देख लें। तो क्या हुआ, हम उसकी मिररिंग कर रहे हैं, हम उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली वो हमारी बात को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। और ये क्लाइंट्स के लिए बहुत यूजफुल होता है काउंसलिंग सेशंस में, कि अगर क्लाइंट को थोड़ा सा कॉपी किया जाए सामने बैठ के, तो वो खुद ब खुद एक्सेप्टेबिलिटी पे आ जाता है, बहुत ज्यादा वो काउंसलर की बात को फिर मानता है। और इस तरह इसी रेपो बिल्डिंग की जो टेक्निक है, मिररिंग एंड मैचिंग, इसको हम डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। डेविड बैरन का एक मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, कि इनसाइड ऑफ रेपो एनीथिंग इज पॉसिबल एंड आउटसाइड ऑफ रेपो लिटिल इज पॉसिबल। यानी रेपो बिल्डिंग हो गई है हमारी, अगला एक रिलेशन बन गया हमारा, हम अगले से कोई भी बात मनवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा रेपो ही उसके साथ बिल्ड नहीं हुआ, कोई बॉन्ड ही नहीं बना आपस में, तो हमारी बात मनवाना मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसी मिररिंग में हमारे पास एक और टेक्निक भी आती है। मिररिंग की ही मैं बात कर रही हूँ तो मैं कवर करती जाऊँ कि बाज़ औक़ात हमें कोई इंसान लगता है ना, मुझसे बड़े इंप्रेस होते हैं और हमारा दिल चाहता है कि जितना वो खुश रहता है ना, मैं भी ऐसे ही खुश रहूँ, जितना उसका हाई लेवल ऑफ एनर्जी है ना, मेरा भी इतना ही रहे। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको कॉपी करना शुरू कर दें। जहां हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल, वो छोटी सी बात पे खिलखिला देती है और हमें तो कोई बहुत ही बड़ा लतीफा चाहिए हंसने के लिए, तो हमने भी कोशिश करनी है उसकी तरह छोटी छोटी बातों पे हंसना शुरू कर दें। वो खुद को पुल अप करती है अचानक से कि अब मैंने ये करना है, आई एम गोइंग टू डू इट। तो हम बैठे हैं, नहीं मुझसे तो नहीं हो रहा, अभी तो मैं थकी नहीं हूँ। हमने ये सोचना है उसने पुल अप किया था, आई हैव टू पुल अप माई सेल्फ ऑल्सो। तो उसकी मिररिंग शुरू कर देनी है हमने, ऑटोमेटिकली हमारा एनर्जी लेवल भी बूस्ट अप होना शुरू हो जाएगा। तो ये मिररिंग हमें फ्रॉम लेजीनेस या फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लाइफ लेके जा सकती है। फिर इसी तरह रेपो बिल्डिंग को हम अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे लूज टेम्पर है किसी इंसान का, तो हम उसके साथ अच्छे रिलेशन से बात करें,
बहुत कूल एंड काम होके आगे से उसके साथ रहें, एक अच्छी रैपो के साथ, तो हम अगले लोगों का टेम्पर लूज है या गुस्सा बहुत आता है, इसमें भी हम रैपो बिल्डिंग के टिप्स यूज कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल एक दो छोटी छोटी टिप्स मैं बता दूं कि कभी भी किसी सेंटेंस को नो या बट से स्टार्ट नहीं करना। उर्दू में हम कहेंगे लेकिन से और नहीं से अपना सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, हम अपनी एक लॉन्ग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसमें हमारे सेंटेंसेस लेकिन और नहीं के आएंगे, लेकिन अगले जैसे देखें अभी मैंने लेकिन कहा है, तो मैं अपनी कन्वर्सेशन में लेकिन का वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं विद इन द सेंटेंसेस यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर मुझे दूसरा इंसान मुखातिब करता है और उसको मैंने जवाब देना है, तो माई फर्स्ट ब्रेकिंग सेंटेंस शुड नॉट बी विद द नो और विद द बट। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो मुझसे कहे कि पाकिस्तान में आजकल सियासत में बहुत गर्मी आई हुई है, तो मैं आगे से कहूँ नहीं नहीं, सियासत में तो हम जब भी इलेक्शन आते हैं बहुत गर्मी आई हुई होती है। मैं ये बात बगैर नहीं कहे भी कह सकती थी, अगर मैं डिफर कर रही थी उससे, तो मैं कह सकती थी सियासत में तो हमेशा ही गर्मी आई रहती है जब भी इलेक्शन आते हैं। या मैं लेकिन से शुरू कर दूं कि लेकिन ये कुछ इसका अच्छा रिजल्ट तो नहीं निकलेगा अगर सियासत में इतनी गर्मी रही तो मैं लेकिन के बगैर भी यही जुमला बोल सकती हूँ। वो क्या होगा, नहीं लेकिन बट नो। ये जो वर्ड्स हैं ये अनकॉन्शियसली सुनने वाले को रिपल्सिव मोड पे ले जाते हैं। अब उसको पता तो नहीं है इस टेक्निक का कि रैपो में अच्छा ऐसी भी कोई टेक्निक है, ही इज नॉट अवेयर ऑफ दिस, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको रिपल्सिव मोड पे मेरे से ले जाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्रेकिंग वर्ड जो था ऑफ द सेंटेंस वो नेगेटिव था। तो ये एक छोटी सी टिप है, इससे हम बहुत अच्छी रैपो बिल्ड दूसरों से कर सकते हैं अगर हम अपने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन बहुत अच्छी कर लें। फिर इसी तरह क्लाइंट्स के साथ जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट सेशन हो गया, अब सेकंड सेशन में आए हैं वही क्लाइंट दोबारा, या घर पे हमारे सिबलिंग्स आए हैं दोबारा वही प्रॉब्लम लेकर, तो हमने वो जो स्मॉल चेंज है ना उसको भी अप्रिशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि आपने तो लास्ट टाइम मुझे इतनी सारी टिप्स बताई थी कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं बेटर फील करूंगी, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सका, बस एक दो ये छोटे छोटे काम मैंने किए। तो उसको फौरन कहना है कि हाँ मुझे तुम में चेंज नजर आ रही है एंड यू आर चेंजिंग नाउ एंड द चेंज इज वेरी गुड। क्या होता है कि मिरेकल तो नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स होते हैं जिसके साथ पॉजिटिविटी आती है। तो हमने उसके उस बेबी स्टेप्स को एक्नॉलेज करना है। यही चीज हम बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नमाज की आदत डाल रहे हैं, कुछ उन्होंने दिन में एक भी नमाज बगैर हमारे के लिए पढ़ी, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने आज की नमाज बगैर मेरे के लिए पढ़ी, ना कि हम बाकी की 4 नमाजों पे उसको तनकीद कर दें, या वी शुड बी एंग्री विद द चाइल्ड कि तुमने बाकी की 4 तुम कब पढ़ोगे। We should appreciate that one namaz that he has offered without कि हमने उसको कहा हो कि get up and do the wuzu and so छोटी छोटी चेंजेस को हमने अप्रिशिएट करना है, बच्चों के अंदर भी, अपने क्लाइंट्स के अंदर भी, और जो कोई भी हमारे पास अपना प्रॉब्लम लेके आता है उसके लिए भी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें एक और चीज है, सेल्फ रैपो होती है हमारी। सेल्फ रैपो क्या है कि मेरा अपने आप के साथ, अपने अंदर मेरी क्या रैपो है, मेरा अपने आप के साथ बॉन्ड कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरे बिलीव्स, मेरे एक्शंस, क्या ये सब अलाइंड हैं या नहीं। और अगर ये सब अलाइंड होंगे देन आई विल बी हेडिंग ऑन टुवर्ड्स नफ्स मुतमइन्ना, अ पीसफुल सोल। इसकी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक शख्स हमसे कहता है कि आई बिलीव इन ऑनेस्टी, मुझे ऑनेस्ट लोग बहुत पसंद हैं और मैं तो काम ही ऑनेस्ट लोगों के साथ करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, उसने ये अपना एक हमें फ्रेम दे दिया कि वो किस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करता है। लेकिन जब उसको खुद मौका मिलता है तो वो थोड़ी बहुत डिसऑनेस्टी कर जाता है। इसमें क्या हुआ, उसकी अपने अंदर रैपो बिल्डिंग ठीक नहीं थी, उसके अपने एक्शंस में और उसके बिलीफ्स में फर्क था। तो वहां पे क्या होगा, पीसफुल सोल मिसिंग होगी। पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड लेने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे एक्शंस और हमारी जो थॉट्स होती हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे आइडियाज, ये सेम हो। अगर ये सेम है तो हमारे अंदर हमारी रैपो स्ट्रॉन्ग है। अगर ये सेम नहीं है तो हमारा अपने आप के साथ भी रिलेशन बुरा होगा। पीछे मैंने जब 4 क्लाउड्स की, 4 क्लाउड्स की स्टार्ट में बात की थी एनएलपी में, एक था नेगेटिव इमोशन, दूसरा था नेगेटिव थिंकिंग, तीसरा था लिमिटिंग बिलीफ्स, और चौथा जो था वो था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये वहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एनएलपी में इसी तरह ट्रीट होते हैं, हम करते हैं इनको कि हम अपने अंदर अपनी रैपो को किस तरह स्ट्रॉन्ग करें कि हम सबसे पहले अपने बिलीफ्स, अपने एक्शंस को एक लाइन में लेके आए। अब इसी एनएलपी में
सॉरी, हमारी जो सेल्फ टॉक है ये इतनी अहमियत रखती है, इसको हम बड़ी निगोसिएशन भी कहते हैं। ये सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा एनएलपी में हमारे वेलबींग के लिए और हमारी पर्सनैलिटी सेटअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थंब रूल ये है कि अपने आप के साथ हमने मायूसी की गुफ्तगू नहीं करनी। लेट्स बी आवर ओन बडी, लेट्स बी आवर ओन बेस्ट फ्रेंड। जैसे जो लोग गाना सुनते हैं ना, तो वो अचानक एक उदास सा गाना सुना तो सैड मोड में चले गए। खासतौर पे रेस्टोरेंट्स में अक्सर ये नजर आता है कि अगर हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जहाँ पे ये बहुत स्लो म्यूजिक चल रहा है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता बैठ के खाना खा रहे होते हैं, हर कोई आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा होता है, एक स्लो मोड में लगता है कि दुनिया गई है। लेकिन अगर एक और रेस्टोरेंट में जाए वहाँ फास्ट म्यूजिक चल रहा है तो लगता है कि दुनिया फास्ट रही है, लोग थोड़ा कहीं कहीं भी ज्यादा लगा रहे होंगे, बात भी, खाना भी थोड़ा जल्दी, ऑटोमेटिकली उनकी स्पीड तेज हुई होती है और सब कुछ लगता है फास्ट मोड पे आया है। वो क्या था, सैड सॉन्ग ने इम्पैक्ट डाला अपना हमारे ऊपर। अगर सैड सॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकता है, अगर फास्ट सॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकता है, तो जो हमारी सोच है, जो हमारी अंदर की थॉट्स हैं, वो तो बिल्कुल हमारे अंदर होती हैं, तो वो कितना ज्यादा सोचें हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। और एक रिसर्च में ये भी मैंने पढ़ा था कि 60 to 70% जो हमारी अपनी बड़ी निगोसिएशन होती है ना अपने आप से, सेल्फ टॉक, वो नेगेटिव होती है मोस्टली। और उसका कुछ परसेंट भी हम डेली इम्प्रूव करना शुरू कर दें, छोटा 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 छोटा, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और उससे हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसका इफेक्ट देखिए, अब फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसने बहुत सालों से म्यूजिक सुनना छोड़ दिया है, वो गाने नहीं सुनता है, लेकिन वो कहीं से गुजर रहा है, वो पुराना गाना उसको सुनाई देता है, वही गाना जो वो सुना करता था, आज भी उसको सारा गाना याद आ जाएगा, आगे पीछे की सारी पोइट्री उस गाने की जहन में रिकॉल, इवन के ट्यून भी रिकॉल हो जाएगी। हालांकि वो गाड़ी चला के आगे निकल गया, बट सॉन्ग इज देयर इन हिज माइंड। तो ये सेल्फ टॉक इसी तरह का इम्पैक्ट रखती है हमारे ऊपर। आज से पुराना भी मेरी नेगेटिव थॉट्स थी, वो भी मेरी आज की प्रेजेंट स्टेट को बना रही है। सेल्फ टॉक इतनी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मैंने आज नेगेटिव सोचा और कल पॉजिटिव सोच रही हूँ तो आज की नेगेटिव टॉक कल पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी, ये डालती है, फ्यूचर तक को हमारे इफेक्ट करती है। तो इसलिए हमने बहुत कॉन्शियसली अपने आप के साथ जो अकेले में हम गुफ्तगू करते हैं उसको पॉजिटिव रखना है। तो हमारी इंटरनल वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बिल्कुल भी एनएलपी में निगलेक्ट नहीं करते। और रैपो बिल्डिंग के लिए विद सेल्फ, विद माय ओन सेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स देना, मिरर देखना। अब हम लाइक टूथपेस्ट कर रहे हैं, मिरर देख रहे हैं, टूथपेस्ट करते हुए हम और कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उस वक्त हमने मिरर में देख के अपने आप को एक पॉजिटिव वर्ड जरूर बोल देना है, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है, या आज तो मैं बड़ी एनर्जेटिक हूँ। कोई एक सेंटेंस अपने आप को पॉजिटिव टूथपेस्ट करते हुए जरूर बोलना है। फिर हम शावर ले रहे होते हैं, उस वक्त हम और कुछ नहीं कर सकते, इवन के कोई जिक्र अस्कार भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर इनसाइड द वॉशरूम। अब पानी बह रहा है ऊपर, तो उस वक्त भी कोई पॉजिटिव सोच अपने अंदर सोचनी है, लाइक मेरी नेगेटिविटीज पानी के साथ ड्रेन आउट हो रही है, आई एम फीलिंग मोर पॉजिटिव। जिस तरह मैं नहाने से लाइट फील कर रही हूँ, इसी तरह मैं इंटरनली भी लाइट फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग हैप्पी। कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट अपने आप को देनी है। ये दो बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वॉशरूम के अंदर मोस्टली हम और कोई काम कर नहीं सक रहे होते, हम सिर्फ या नहा रहे हैं या जैसे पेस्ट कर रहे हैं, तो हम उस वक्त जिक्र अस्कार नहीं कर सक रहे होते, तो उसको यूटिलाइज करें, वो बेस्ट मोमेंट होता है टू यूटिलाइज इट फॉर अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जी नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ तक हमने एनएलपी में ये जो, वैसे तो डजन्स एंड डजन्स ऑफ टेक्निक्स हैं और इसकी पूरी इसमें थेरेपीज भी हैं, और स्पेशली इसमें टाइमलाइन थेरेपीज भी हैं जो कि ऑब्वियसली थ्रू गाइडेड काउंसलर्स होती हैं। लेकिन ये कुछ हैंडी टिप्स मैंने इसलिए दिए कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मैं चाहती हूँ फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अब फैमिली वाले क्या समझते हैं, यूजुअली एक कॉमन थॉट बता रही हूँ कि घर वाले कह देते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, साइकोलॉजिस्ट के पास तो ज़हनी मरीज जाते हैं, काउंसलर्स के पास, तुम्हें क्या हुआ, तुम तो ठीक ठाक हो। मेरे अंदर क्या टर्मोइल चल रहा है ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए उसको हमने निकालना है थ्रू दीज फ्यू टेक्निक्स, कि अगर हमें कोई लेके नहीं जाता किसी काउंसलर के पास, कोई अलाउ नहीं कर रहा हमें, या हमें अफोर्डेबिलिटी हमारी नहीं है, इस महंगाई के दौर में हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इन दैट केस हमने ये खुद टेक्निक्स अपने ऊपर अप्लाई कर लेनी है। एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट इसका जरूर मिलेगा। और एनएलपी की ये टेक्निक्स करते हुए हम डेफिनेटली ऑप्टिमिज्म और सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जरूर जाएंगे। एंड में थोड़ा सा इसको माइंड अप करते हुए मैं ये कहूंगी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये तीनों जो टर्म्स है, न्यूरो लिंग्विस्टिक और प्रोग्रामिंग, आपस में इंटरकनेक्टेड है। हम इनमें से किसी एक पर भी काम करना शुरू करें तो बाकी दोनों इफेक्ट होंगे।
फिर एक लास्ट सेंटेंसेस कुछ मेरे यही हैं कि ये जादुई छड़ी की तरह काम नहीं होगा, ओवरनाइट हम समझेंगे कुछ होगा, स्लो बेबी स्टेप्स के साथ ये काम होगा। बी पेशेंट एंड बी परसिस्टेंट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, वो अल गजाली का एक कॉल है ना कि अपने काम को इखलास से नियत के साथ करें, प्योर सोल के साथ, फिर उसको बार बार करें तो वो इजी टू डू लिस्ट में आ जाता है। जहां वो मुश्किल था ना वो इजी टू डू कैटेगरी में आ गया। तो NLP जो है इन द एंड एज थेरेपी इटसेल्फ भी यूज होती है, और इसको विद द अदर थेरेपीज जहाँ बहुत सवेयर फोबियाज होते हैं, बहुत सवेयर साइकेट्रिक डिसेबिलिटीज होती हैं, तो उसमें ये along with the sideline भी यूज होती है ये। It is just we who should pick us up self, like instant pick me up जिसको कहते हैं ना hard time में, तो खुद को खुद ही pull out करना है हमने मुश्किल हालात में से through these few techniques. Okay, this is all from my side. Any question answers now? First question आया कि how to join a full course. आप इसके लिए गूगल पे जाएं, डिफरेंट है। मैं यहाँ पर किसी खास की ओपनली एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करूंगी, लेकिन आपको बस केयरफुली करना होगा, क्योंकि बहुत सोने वही बात है कि दुकान आजकल खोल लेते हैं लोग, लेकिन बस रिकॉग्नाइज्ड हो, किसी खास यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हो कि वो आपको सर्टिफिकेट दे रहे हो, उसका पूरी वेबसाइट आप चेक करें उनकी कि वाकई है ये वेबसाइट किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की या अच्छे इंस्टीट्यूट की, उसको आप ज्वाइन करें। और ये कोई बहुत लंबा कोर्स नहीं होता, हार्डली 1 मंथ का या इस तरह होता है, थोड़ा इंटेंसिव कोर्स होता है ये बहुत, लेकिन ये है कि एनीबडी कैन डू इट। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, कोई भी फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ इस कोर्स को कर सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि what are some of the specific NLP techniques that have been shown to be effective in helping individuals overcome limiting beliefs? इसकी मैंने अभी बात की ना, limiting beliefs के लिए यही टेक्निक्स इस्तेमाल हो सकती हैं। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के लिए जो मैंने बताया, डिसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर लिमिटिंग बिलीफ है उसके लिए तो ये एंकरिंग बहुत अच्छी रहती है, रीफ्रेमिंग बहुत अच्छी रहती है जो मैंने पीछे बताई हैं अभी। नेगेटिव थॉट मोस्टली पास्ट इवेंट्स की वजह से भी ज्यादा आ रही होती है, तो डिसोसिएशन और ये मेटा पोजिशन सिचुएशन से यानी बाहर निकल के XYZ की स्टोरी सुनाना, ये नेगेटिव थॉट्स वगैरह के पैटर्न्स को बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम करती है। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यही माइंड की डेवलपमेंट है, हमारी थॉट्स की, हमारी माइंड की डेवलपमेंट जो है, दिस इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। एक होती है कि मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, जिम में मेरा स्टेमिना बहुत बढ़ गया है, वो मेरी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन इंटेलेक्चुअल होती है कि मेरी माइंड कैपेसिटी बहुत अच्छी हो रही है, मेरा क्विक डिसीजन लेना बहुत अच्छा हो गया है, मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है, मैं बहुत सी सिचुएशंस में कूल एंड काम रहती हूँ। दिस इज ऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अच्छा, खुद को एंग्री होने से कैसे बचाना है, इसका वही एंकरिंग टेक्निक मैंने बताई ना, कि जैसे खुद को चुटकी काट लेनी है, खुद को एंकर कर लें किसी चीज के साथ, तो एक शॉर्ट रेमेडी हो सकती है। अच्छा, एंग्री होने में एक जैसे हमें अपने रिलीजन में भी बहुत अच्छा मिलता है ना, मैंने स्टार्ट में डिसोसिएशन में बताया था, जैसे कि कैंसिल 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 बोल दें, या फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था टिश्यू पेपर का बॉक्स उठा के साइड पे रख दें। तो ये हमें अपना रिलीजन में क्या मिलता है गुस्से का, कि फौरन आउजुबिल्ला पढ़ लें, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, चेंज योर पोजीशन, आउजुबिल्ला पढ़ लें, वजू कर लें। वजू क्या है, वो पानी हमारे एंगर को कूल डाउन करता है, पानी इज अ वेरी गुड हीलर। तो ये जो डिस्कनेक्ट होना है ना, डिसोसिएट होना, ये बहुत अच्छा होता है एंग्री होने में, बहुत अच्छी टेक्निक होती है। अच्छा, एंकरिंग टेक्निक के बारे में पूछा हुआ है कि कोई गुड मेमोरी इंटेंशनली लानी है। हाँ, इसको लाके थॉट प्रोसेस बिल्कुल गुड मेमोरी को लेके आना है, और वो एक ही को बार बार करना है। ये नहीं कि हर बार जब एंकर बनाए तो कोई नई गुड मेमोरी लेके आए, कोशिश करें एक के साथ खुद को एंकर करें, क्योंकि चेंज होती रहेंगी, कभी कोई और मेमोरी सोची, कभी कोई और, तो एंकर सही नहीं हो सकेंगे। एक गुड मेमोरी के साथ अपने हाथों को एंकर करना है, उसको बार बार उस इमोशन को फील करते हुए, तो बैड मोमेंट में खुद ब खुद वो हमें रिकॉल हो जाएगी वो वाली फीलिंग। दूसरे पर्सन जो हमें इफेक्ट करें, इसमें रैपो बिल्डिंग बहुत मैटर करती है दूसरे पर्सन के साथ, इसलिए मैंने रैपो को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था, क्योंकि थ्रू रैपो ही हम अगले इंसान के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और रैपो के जरिए हम उसकी नेगेटिविटी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के यूज के साथ, वो भी रेपो में ही था ये सारा कि हाउ टू यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसके साथ हम जैसे बट और नो से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना, वो नेगेटिवली बोल रहा है तो
ऑटोमेटिकली हमने ये नहीं कि कमांडिंग एटीट्यूड में पॉजिटिविटी उसको देनी है, हमने अपनी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में उसको पॉजिटिविटी देनी है कि हमारा सेंटेंस उसको पॉजिटिव लगे, खुद ब खुद उसकी नेगेटिविटी थोड़ी सी कम होगी। और फिर इसमें और भी एनएलपी की बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन जो शॉर्ट हैंडी एक कॉमन मैन के लिए हैं वो फिर मैंने थोड़ी सी यही मेंशन की है आपको। अपनी सोचों को किस तरह रोकें कि बिस्तर पर लेटे ही आने लगती हैं, इसका वही है कि अगर आप नाइट के लेते हुए स्कार पढ़ लें। अच्छा, रात को सोते हुए एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत से लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं नींद नहीं आ रही होती, कुछ कहते हैं कि सोचें बहुत देर तक रहती हैं जहन में। खुद को डिसोसिएट कैसे करेंगे, यहाँ पे आंखें जब बंद किए हैं, जब दुआएं पढ़ ली, सारा कुछ हो गया, अब सोने लगे हैं, अब स्लो काउंटिंग करनी है, बैकवर्ड काउंटिंग, बंद आंखों के साथ, दिल में, नॉट विस्पर, जस्ट दिल में 100, 99, 98, इस तरह, यानी बहुत स्लो पेस पे। 100 से स्टार्ट कर लें, 50 से स्टार्ट कर लें, 50, 49। ये इंसोम्निया का इलाज भी बहुत अच्छा है, बैड ड्रीम्स का इलाज बहुत अच्छा है इसमें, और ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसका टाइम ही नहीं मिलेगा, हम अपनी बैकवर्ड काउंटिंग, और हार्डली 75 तक पहुंचे होंगे, 70 तक, और हम सो चुके होंगे, एक डीप स्लीप होगी हमारी। फिर ये है कि आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिसोसिएट, फिजिकली आई कैन डू बट मेंटली नॉट, हाउ टू डू दैट। इसकी यही टेक्निक्स जो मैंने बताई हैं, पहली वही है, अपने आप को कमांडिंग एटीट्यूड रखना है डिसोसिएट करने के लिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। सेकेंडली, फॉरन पावर ऑफ नाउ अवेल करनी है। पावर ऑफ नाउ क्या है, वही जो मैं दोबारा बोलूंगी, टिश्यू पेपर बॉक्स पड़ा था उसको हटा दिया, मोबाइल सामने पड़ा था, ओहो इसका स्क्रीन कितना गंदा हो रहा है, टिश्यू से उसको साफ कर दिया, एनी सच थिंग, स्मॉल पिटी थिंग, हमने खुद को नेगेटिव थॉट से डिसोसिएट कर लिया। फिर फोकस इंप्रूव करने के लिए भी एनएलपी की बहुत सी टेक्निक्स हैं, जिनमें से एक ही एंकरिंग है। अगर फोकस नहीं हो रहा तो जब हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसी के साथ खुद को एंकर करते हैं, वहां खुद को एंकर हो गए, बार बार उसको फील किया, हाथ के साथ एंकर बनाया। फिर रीफ्रेमिंग टेक्निक इसमें, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं तो फोकस लूज कर जाती हूँ, मैं पढ़ने बैठती हूँ, बिल्कुल मेरा फोकस नहीं रहता, इसकी बजाय मैं उसको रीफ्रेम कर सकती हूँ कि आज का टॉपिक तो लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है, अब मैंने क्या किया, वो नेगेटिव को मैंने रीफ्रेम कर दिया, और मैंने कहा आज टाइम भी बहुत अच्छा है और आज तो अच्छी पढ़ाई हो जाएगी लगता है, तो आई इंक्रीज माई फोकस जस्ट बाय रीफ्रेमिंग अ फ्यू सेंटेंसेस। अगर दुनिया में हर इंसान मुस्बत ही सोचता है तो मनफी सोच का नाम ही ना होगा अल्लाह ताला, बिल्कुल। अगर हम सब अपने अपने ओन पर कोशिश करें थोड़ा थोड़ा कि मैंने पॉजिटिविटी देनी है टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड, उसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, उसमें प्लांट्स भी आते हैं, उसमें एनिमल्स भी आते हैं, अल्लाह ताला से हम ये चाहें कि आई शुड बी अ हीलर फॉर एवरीवन ऑन दिस अर्थ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु से शायद है, उसके साथ रिलेटेड है ये वाकया कि शायद वही थे या कोई और सहाबी थे, उन्होंने आपसे से फरमाया, से बताया कि मुझे सांप नजर आया था, तो लेकिन फिर वो कहीं गायब हो गया, तो आप ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सांप के शर से महफूज कर किया, सांप को तुम्हारे से। अब वो क्या था कि हम क्योंकि मार देते हैं जानवरों को, तो यानी हम उनके लिए शर बनते हैं, और वो हमें इफेक्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए शर बनते हैं। तो वी शुड प्रे कि हम शिफा बने सबके लिए, फॉर ऑल द क्रिएशन ऑन दिस अर्थ, तो इंशाल्लाह दिस विल बी अ बेटर वर्ल्ड देन। चेंज ऑफ प्लेस को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, या बच्चों को कैसे मेंटली प्रिपेयर किया जाए, इसमें वही पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, पॉजिटिव वर्ड्स की सिलेक्शन आएगी, ठीक है, वो जो रीफ्रेमिंग टेक्निक थी। चेंज ऑफ प्लेस, जैसे मैंने कहा था कि यू आर चेंजिंग एंड द चेंज इज सो गुड, तो चेंज को एक्सेप्ट करना है, और अल्लाह ताला ने ह्यूमन बींग्स में बड़ी अच्छी कैपेसिटी रखी है कि विद इन फ्यू डेज और टाइम हम नई जगह पे एडजस्ट कर जाते हैं, क्योंकि जैसे पहले पुराने घर से एसोसिएटेड थे, फिर नए घर में 3 साल रहे, तो अब उसको छोड़ते हुए दुखी हो रहे हैं, तो वो क्या था, अल्लाह ताला ने एक कैपेसिटी रखी है हमारे अंदर टू गेट एडजस्टेड एट अ न्यू प्लेस, और इसके लिए यही रीफ्रेमिंग टेक्निक बहुत अच्छी तरह आएगी। फिर पास्ट मेमोरी को बार बार याद नहीं करना कि उस घर में तो ये चीज हम यहाँ रखते थे, उस घर से स्कूल इतना करीब था, उन चीजों को नहीं याद करना, यहाँ देखना है कि यहाँ से स्कूल जाते हुए कितने प्लांट्स आते हैं रास्ते में, कोई अच्छी जगह आती है, या किसी नेबर से बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई है, तो यहाँ नेबर कितने अच्छे मिल गए हैं, एनी पॉजिटिविटी that we can find at that place, and we should not compare it with that previous place. सेल्फ पिटी में यही आता है, नेगेटिव थॉट्स अपने, हम जब पिछली कहानियां बार बार सोचते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो, हम उसमें पिटी कार्ड अपने हाथ में पकड़ के मोस्टली प्रीवियस सिचुएशंस को सोचते हैं। इसमें ये मेटा पोजीशन बहुत हेल्प करती है। मेटा पोजीशन जो थी, XYZ का नाम देना है हमने अपने आप को, और अपनी कहानी को XYZ करके सोचना है,
खुद ब खुद जो है हमारा डिसोसिएट हो जाएगी, हमारी जो इमोशंस हैं उस इवेंट के साथ। सेल्फ पिटी सिर्फ तब आती है जब मैं अपने आप को ही बहुत ज्यादा उस इवेंट में इमोशंस फुल रखते हुए सोचती हूँ, तो मेरे हाथ में सेल्फ पिटी का कार्ड आ जाता है। इस कार्ड को मैंने तभी फेंकना है जब मैंने अपने आप को डिसोसिएट कर देना है, मैंने किसी दूसरे के नाम से उस कहानी को सोचना है। एनएलपी ट्रेनर को प्रॉपर एज अ साइकोलॉजिस्ट नहीं, एज अ काउंसलर का यूजली इसको नाम दिया जाता है, नॉट एज अ साइको, क्योंकि साइकोलॉजी इटसेल्फ एक पूरी फील्ड है और एनएलपी जो है, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है, ये इसको हम अलग पार्ट ऑफ साइकोलॉजी है, लेकिन क्योंकि कंप्लीट साइकोलॉजी इसमें कवर नहीं हो रही, इट इज अ शॉर्ट 1 मंथ और कोर्स, तो इसको हम कंप्लीट, मेरे ख्याल में साइकोलॉजिस्ट कहना साइकोलॉजिस्ट के साथ ना इंसाफी होगी, क्योंकि वो जाहिर है आफ्टर लॉन्ग टर्म वो ये अचीव करते हैं। प्लीज आप हम लोगों को ये, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर आप लोगों को पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट करना है, कोई टिप पूछनी है, तो आई एम अवेलेबल। एहसास ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, उसमें हूँ मैं, तो इंशाल्लाह आई विल बी देयर इन टच फॉर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली एज वेल एंड थ्रू एहसास फोरम एज वेल। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छा हाँ, सॉरी, एक क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है और ये मैं इसका जवाब देना चाहूंगी कि कैन एनएलपी टेक्निक्स बी यूज्ड एट वन टाइम, अगर हम किसी से सिर्फ एक बार मिलते हैं। मैंने बिल्कुल जी, ये स्टार्ट में भी बताया था कि एट द फर्स्ट गो आपको पॉजिटिविटी जरूर नजर आएगी। एक बार भी टेक्निक अप्लाई करते हैं ना, तो उसी दिन भी हमें उसका रिजल्ट जरूर नजर आता है। तो किसी से हम एक बार भी मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में अक्सर लोगों से एक ही बार मुलाकात होती है, हम वी वांट कि हमारी इसके साथ अच्छी मीटिंग जाए, तो हम एक बार भी अपनी थॉट्स को उससे मिलते वक्त रिफ्रेम कर दें, या हम ये टेक्निक्स वहां पे जो अप्लाई हो सकती हैं रैपो बिल्डिंग की हम कर लें, तो इंशाल्लाह इन वन स्टांस भी इसका रिजल्ट मिलता है हमें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। If anybody would like to ask any more questions, we'll wait for a few minutes and then we'll wrap up, inshallah. ये हाउ टू परसू अ कैरियर का, जी ये बिल्कुल, आप जब इसमें एक होती है बेसिक प्रैक्टिशनर और एक इसमें मास्टर होती है, दोनों साथ विद इन अ मंथ दोनों कंप्लीट हो जाती हैं। इंटेंसिव होती हैं, कई कई घंटों की होती हैं एक्सरसाइजेस इसकी, यानी अगर 6 या 7 घंटे लगातार बैठना पड़ता है, स्ट्रेच 5 मिनट्स की ब्रेक्स तो आती हैं दरमियान में, लेकिन वो जब इंटेंसिव एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं तो उसके बाद फिर वो जब सर्टिफिकेट्स देते हैं तो फिर वो एफिलिएशन होती है उनकी उस यूनिवर्सिटी के साथ, और वहां से फिर हमें प्रैक्टिशनर का मिल जाती है सर्टिफिकेट। और फिर इसके लिए तो अब तो बहुत से इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने प्रोफाइल बना लिए हैं। अभी कल ही मेरी किसी से बात हुई तो वो $100 पर सेशन ले रही हैं, वो पाकिस्तान में रहते हुए एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, तो इसको डेफिनेटली एज अ कैरियर परस्यू किया जा सकता है। इसमें वो जो मैंने रीफ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस में एग्जांपल दी थी कि जो आप ये फैमिली का पूछ रही हैं, कि जो मैंने कहा था कि उफ इतनी ट्रैफिक है, और उस एक सेंटेंस को फॉर्मेट कर दिया हमने, तो जब हम फैमिली में बैठे होते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी उसमें बहुत इम्पैक्ट रखती है। हमने दूसरों की नेगेटिविटी से ज्यादा अपनी पॉजिटिविटी पे फोकस करना है कि मैंने कितने पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज करने हैं, मैंने किस तरह से बच्चों की मोर एनकरेजिंग मदर बन रहा है। रैपो बिल्डिंग में था ना कि स्मॉल स्टेप्स को भी हमने एनकरेज करना है, और मैंने किस तरह अपना एक इमेज क्रिएट करना है। वो मोस्टली होता है ना, कोई बहुत नेक हो जाए, पहले किसी और तरह थे, अब उन्होंने कुरान पाक पढ़ लिया, उनको समझ आ गई, तो लोग अक्सर उनको ताना दे देते हैं, बड़ी नेक हो गई हो तुम। तो इस सेंटेंस उनको अंदर से हर्ट तो कर रहा होता है, लेकिन वो क्या करती हैं कि वो अपना एक्शन सही रखती हैं और अपने अच्छे अखलाक के साथ और अपने इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में सही रखती हैं। कुछ अर्से बाद वही लोग कहते हैं मेरी बहन तो बहुत नेक है, मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, मैं तो अपने सारे रिलीजियस मैटर्स उसी से पूछती हूँ।
तो क्या हुआ, उसने अपने आप पे फोकस रखा, उसने लोगों की नेगेटिविटी से खुद को इफेक्ट नहीं होने दिया। तो जब हम फैमिली में रहते हैं तो हमने अपनी पॉजिटिविटी को पहले देखना है कि मैं कितनी पॉजिटिव हूँ टुवर्ड्स माय फैमिली। तो हमारी पॉजिटिविटी डेफिनेटली हमारी फैमिली पे इम्पैक्ट डालेगी। अच्छा, सुबह सुबह जब सो के उठते हैं दिल पे घबराहट होती है, सुबह सुबह जब आंखें खोलें तो एक पहला काम, उठने की दुआ हमें इसलिए बताई गई है कि we become thankful to Allah for a good morning, for having a good morning with us। एक खूबसूरत सुबह हमें दी गई है। और दूसरा ये कि अभी बेड पे लेटने में एक आधा मिनट है, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं बेड से, उसमें पॉजिटिव थॉट जरूर लेके आए। लाइक आज की सुबह बहुत अच्छी है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरना है, या आज मेरे अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहनी है, या कोई पॉजिटिविटी लाइक किसी को फोन नहीं कर पा रहे थे, आज मैंने उसको फोन करना है और आज उसका बहुत अच्छी बात करनी है मैंने। एनीथिंग जो मेरा एक टास्क है जो मुझसे नहीं हो पा रहा, उसको सोच लेना कि आज मैंने ये करना है। बस उसके बाद उसको दोबारा सोचना नहीं है, उसको ड्रैग नहीं करना उस फीलिंग को कि मैंने सुबह ये सोचा था। लेट इट गो, लेट यू फॉरगेट योरसेल्फ अबाउट दैट फीलिंग कि मैंने क्या सोचा था सुबह। सिर्फ सोचना है एक लम्हे के लिए बेड में लेटे हुए। तो खुद ब खुद वो जो घबराहट थी या वो जो नेगेटिविटीज फिर उसके बाद जंबल अप होती रही दिन में, खुद ब खुद विद द पैसेज ऑफ टाइम पता ही नहीं चलता और वो फेड डाउन होती हैं। और फिर ये जो मैंने डीप ब्रीदिंग बताई है ये बहुत अच्छी होती है। डीप ब्रीदिंग में हमारा माइंड अल्फा स्टेट में जाता है। हम सारा दिन बीटा में रहते हैं। बीटा स्टेट में क्या होता है, सारा दिन हम एक एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। आवर माइंड नीड्स द ब्रेक, उसको ब्रेक देने के लिए थोड़ी देर की डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। बीटा से अल्फा पे आए, उसकी फ्रीक्वेंसी स्लो डाउन हो जाए हमारी, तो वो भी हमें बहुत कामनेस की तरफ लेके जाती है, बहुत हैप्पी मोड की तरफ हम आते हैं। एनएलपी को मोस्टली तो आप जो कर सकती है वो, इसका गूगल पे इतना स्टफ अवेलेबल है, इतना कुछ, और यूट्यूब पे इवन लेक्चर्स भी अवेलेबल है। आप उर्दू में टाइप करेंगे एनएलपी लेक्चर्स इन उर्दू भी, इवन तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं। डॉक्टर समी हैं, डॉक्टर मोइज हुसैन है, अरसलान लारिक हैं, बहुत से नाम पाकिस्तान में भी हैं जो उर्दू में लेक्चर्स दे रहे हैं। और इसके अलावा इंग्लिश में भी बहुत कुछ मिलेगा इसके ऊपर। तो गूगल और यूट्यूब पे पर्टिकुलरली इस पे बहुत कुछ अवेलेबल है अब मटेरियल। रिलेशनशिप बॉन्डिंग के लिए वही रैपो बिल्डिंग बहुत जरूरी है, इसके लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। और फैमिली के साथ अच्छा जब बैठे हो ना, तो पुरानी कोई नेगेटिव बात आ जाती है तो उसको, यानी हमने फॉर्मेट करना है चीजों को टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। किसी के बुरे इवेंट्स याद आ रहे हैं तो कोशिश करना है उस टॉपिक को छोड़ दें। फिर ये होता है कि रियली लोग मशवरा करते हैं। जैसे अगर मेरी बहन आती है मेरे पास, मुझसे कहती है मेरी सास ने बहुत बुरा किया, अब मैं बीइंग अ सिस्टर इमोशन में जाके कह सकती हूँ हाँ तुम्हारी सास बहुत बुरी है, पता नहीं कब सुधरेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या हुआ, मैंने मजीद उसके अंदर नेगेटिविटी को पंप अप किया। मैं इसको पॉजिटिवली भी ले सकती हूँ, मेरे सामने उसकी सास नहीं है, मैं उसकी सास को जाके कह भी नहीं सकती कि शी इज डूइंग रॉन्ग, बीइंग एल्डर या मुझसे दूर है या व्हाटएवर। मैं अपनी बहन को जरूर कह सकती हूँ। मैंने उसको कहना है अच्छा नेक्स्ट टाइम वो ऐसा करे ना तो तुम कोई पॉजिटिव, मैं उसको रिस्पॉन्स दे दूं कि तुम ये रिस्पॉन्स कर देना, तुम वहां से हट जाना, एनीथिंग पॉजिटिविटी। मैंने अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है और मैंने ये देखना है कि जो मुझसे मशवरा कर रहा है मैंने उसको बताना है कि व्हाट यू हैव टू डू। मैंने उसके साथ मिलकर उसकी पिटी में शेयर नहीं डालना कि हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो दिस इज हाउ आई कैन इंक्रीज पॉजिटिविटी इन माई फैमिली। एनएलपी काउंसलर का जो 1 मंथ का कोर्स होता है ना, मैंने बताया बहुत इंटेंसिव कोर्स होता है। यानी इसको करने के बाद हम में इतनी टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। और जैसे एक लेक्चर है ऑनलाइन फॉर एग्जांपल मैं अगर कर रही हूँ तो एक पहले लेक्चर मिलेगा, उसके बाद जो टेक्निक होगी वो पूछी जाएगी कि अच्छा किसको सैडनेस होती है। फॉर एग्जांपल मैंने हाथ खड़ा कर दिया कि मुझे सैडनेस होती है ग्रुप में से, तो वो कहेंगे अच्छा आपको सैडनेस होती है, आप रात को लेटती हैं, अच्छा हाँ मैं रोने लग जाती हूँ, ब्ला ब्ला, मैंने इतनी सारी बता दी। अब उन्होंने मेरे ऊपर थेरेपी अप्लाई करनी है सबके सामने, मेरी सैडनेस को उन्होंने रिमूव करना है। अब करके दिखा दिया हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें। अब हमें ब्रेकआउट रूम्स में जाना होगा, सब रूम्स में जाएंगे, उसमें 7 ट्रेनर्स मौजूद होंगे, 4-4 स्टूडेंट्स हैं, 5-5, हर एक की केस स्टडी होगी। सैडनेस है या कोई भी किसी का प्रॉब्लम है उसको लिया जाएगा, उसके ऊपर उसकी थेरेपी होगी। थेरेपी में जहां हम गलत हो रहे हैं ट्रेनर साथ होगा, वो फौरन कहेगा देखिए आपने यहाँ गलत किया, अभी आपने वहां क्या सीखा था मेन रूम में, दोबारा हमें उसकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, दोबारा हमसे उसकी थेरेपी पूरी करवाई जाएगी। तो फिर हम दोबारा मेन रूम में आएंगे और मेन रूम में आके हम अपनी रिपोर्ट शेयर करेंगे। तो उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं, जो गुड प्लस माइनस जो होता है वो सारा बताया जाता है। फिर हमें आउट ऑफ द क्लास भी काम दिए जाते हैं। फिर हमने खुद से भी किसी की थेरेपीज करके लानी होती है कि मैंने किसी की और मेरे पास क्या रिजल्ट आया उसका।
तो ये बहुत इंटेंसिव कोर्स होता है, तो इसके बाद इतना हो जाता है। और फिर ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो छोड़ नहीं देते, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं छोड़ देते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स अपने साथ जोड़े रखते हैं कि जब फर्स्ट काउंसलिंग करनी है तो मुझसे कांटेक्ट करना है, ओके टुडे इज माय फर्स्ट काउंसलिंग, व्हाट शुड आई डू, तो वो पूरी गाइडलाइन देते हैं। फिर वो पूछते हैं कैसी रही आपकी फर्स्ट काउंसलिंग। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट द लाइफ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी जगहों से कर लेना बहुत अच्छा होता है कि वो एक बैक ऑफ द बैक हमें हमें कोई ना कोई सपोर्ट मौजूद होती है। बिल्कुल एनएलपी की, क्योंकि आजकल जो नेक्स्ट जो प्रोफेशन दुनिया में बहुत ज्यादा, जिसमें अगर हम इकोनॉमी वाइज देखें तो जिसमें बहुत अच्छी अर्निंग होनी है आगे, वो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं। उसी में एनएलपी काउंसलर्स को भी अगर हम काउंट कर लें, क्योंकि आगे डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, और जिस फास्ट पेस पे हम गैजेट्स यूज कर रहे हैं और फैमिली बॉन्डिंग्स कम हो रही हैं और सारा कुछ, तो डेफिनेटली काउंसलर्स का आगे बहुत है उनके लिए, स्कोप है उनके लिए। आपका एंगर इश्यू अच्छा ज्यादा है कि पीपल कीप ट्रिगरिंग यू। देखिए, अपना हमने क्या करना होता है, रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देना होता। लेट्स कीप आवर रिमोट कंट्रोल इन आवर हैंड्स। वो मैंने पीछे बताया ना, नफ्से अम्मारा नफ्से लवामा, उसमें भी हम अपना रिमोट कंट्रोल नफ्से अम्मारा को दे देते हैं। तो रिमोट कंट्रोल किसी को नहीं देना, ना अपने नफ्स को लेने देना है, ना इर्द गिर्द के लोगों को लेने देना है। वो जो कर रहे हैं ये उनकी फीलिंग्स हैं, वो जो बुरा बोल रहे हैं ये वो है, दैट इज देयर अपब्रिंगिंग, या दैट इज देयर सिचुएशंस जिनसे वो हार्ड टाइम से गुजरे हैं, या दैट इज देयर नेचर कि वो इस तरह करते हैं। उनके हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने कुछ कहा तो आई स्टार्ट गेटिंग एंग्री। ये चीज, आई विल बिकम अ पपेट इन देयर हैंड्स अदरवाइज, अगर वो ट्रिगर करेंगे मुझे। तो बस ये सोचना है कि इट इज हिज बिहेवियर, इट शुड नॉट अफेक्ट मी। ये एक छोटी सी इसकी थंब रूल होता है, ठीक है। और क्या ये कोर्स करने से हम खुद भी हाँ, खुद अपनी काउंसलिंग, जैसे मैंने अभी आपको बहुत सी टिप्स बताई, ये हैंडी इसीलिए बताएंगे कि हम अपने ऊपर खुद अप्लाई कर सकें या अपने घर वालों पे कर सकें। अगर हम काउंसलर के पास नहीं जा सकते या अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो डेफिनेटली एनएलपी जब सीख भी लेते हैं तो खुद अपने ऊपर भी कर सकते हैं और अपने घर वालों पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से एनएलपी के ऐसी हैं लोग जो इसको एज अ प्रोफेशन परसू नहीं कर रहे, लेकिन उनको ये डेली लाइफ में हेल्प कर रही है। तो इट डेफिनेटली विल हेल्प एवरीवन हु इज विलिंग टू डू एनएलपी। ओके, थैंक यू। आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं अब।